میرا نام جنید ہے اور میں آگرہ کا رہنے والا ہوں اور اٹاوہ میں کام کرتا تھا اور ہماری رشتہ داری میں ایک خالہ گوالیار میں رہتی ہیں۔ خالہ کے 3 بچے تھے جن میں سے ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں تھیں۔ بڑی لڑکی کی ابھی 3 سال پہلے شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے پتی کے پاس رہنے سعودی عرب چلی گئی تھی۔ دوسری لڑکی گھر پر رہتی تھی جس کا نام رضوانہ تھا۔ خالہ کا لڑکا میرا ہی ہم عمر تھا جس کی شادی بھی ہو گئی تھی، لیکن ٹھیک ٹھاک کچھ کماتا نہیں تھا تو آئے دن جھگڑا بنا رہتا تھا اور اس کی بیوی مائکے پڑی رہتی تھی۔ گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے جس وجہ سے رضوانہ کی شادی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، جبکہ وہ بھی 30 سے 32 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ آکرشک چہرہ رکھنے والی لڑکی تھی جو قریب کئی سال پہلے تک اچھی صحت رکھتی تھی۔ میں نے کبھی اپنی خالہ کی لڑکیوں پر غلط نظر نہیں ڈالی تھی، لیکن اب وہ لگ بھگ ڈھانچہ سی دبلی پتلی ہو گئی تھی، دیکھ کر کسی بیماری کا شکار لگتی تھی۔ مگر خالہ نے بتایا تھا کہ اس کی سبھی جانچیں ہو چکی تھیں اور سبھی ٹھیک ٹھاک ہی رہی تھیں، اسے کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں تھی۔ پھر کیا وجہ تھی اس کے ایک دم ڈھل جانے کی؟ ایک دن خالہ کا فون آیا تھا کہ رضوانہ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ دراصل گوالیار میں جس جگہ نوکری کرنا وہ چاہ رہی تھی اس کا ہیڈ آفس اٹاوہ میں تھا اور انٹرویو یہیں ہونا تھا۔ رضوانہ کے مطابق شام کو جانا تھا اور وہ یوں شام یا رات کو سفر کرنے کے پکش میں نہیں تھی۔ میں ان کی چنتا کو سمجھ گیا تھا اور انہیں بھروسہ دلایا تھا کہ وہ فکر نہ کریں، میں انتظام کر دوں گا۔ رات بھر رک کے صبح میں خود ہی ٹرین پر بٹھا آؤں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنے مکان مالک کو یہ بات بتا کر اس کے رکنے کے لیے ان سے اجازت مانگی تھی۔ یہ بھی پیشکش کی اگر کوئی ان کو اعتراض ہو تو وہ نیچے سلا سکتے ہیں۔ یہ میری ایک عادت ہے کہ جہاں رہتا ہوں وہاں اپنی عزت تو بنا کر رکھتا ہوں کہ سامنے والا بھروسہ کر سکے۔ اور پھر وہ لڑکی کوئی غیر یا دوست نہیں بلکہ خالہ ذات بہن ہی تھی، تو انہیں کیا اعتراض ہوتا؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ 11 بجے آ گئی تھی۔ میں نے اسے اسٹیشن سے لے لیا اور اس کی بتائی جگہ پر چھوڑ دیا اور خود اپنے آفس نکل آیا۔ آگے کا وقت ویسا ہی گزرا جیسا گزرتا ہے۔ پہلے سیدھے گھر لے گیا جہاں وہ نہا دھو کر فریش ہوئی، پھر اسے بازار لے آیا جہاں تھوڑی شاپنگ کرنے کے بعد وہیں پر کھانا کھلایا اور 10 بجے ہم لوگ گھر آ گئے۔ اسی بیچ ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، باوجود اس کے کہ اس کی بہت کم بولنے کی عادت تھی، یا شاید ہم دونوں کی عمر کے فرق کی وجہ سے وہ اسہج ہو رہی تھی۔ قریب 11 بجے سونے کے لیے لیٹنے کی نوبت آئی تھی۔ اوپر میرے کمرے میں ایک تخت ہی تھا جو مکان مالک کی مہربانی سے لیٹنے کے کام آتا تھا۔ باقی میں تو سفری زندگی کی وجہ سے کوئی خاص سامان ہی نہیں بناتا تھا۔ اسے میں نے تخت پر لٹا دیا اور خود نیچے چٹائی بچھا کر لیٹ گیا، اور میں اس سے پوچھنے لگا کہ پہلے تو تمہاری صحت اچھی بھلی تھی اور دکھنے میں کافی اچھی بھی لگتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے انمنے بھاو سے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا کوئی ایسی بیماری ہے جو خالہ نے مجھے بتانی ٹھیک نہ سمجھی ہو۔ وہ ایک دم سے سک پکا گئی اور کہنے لگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے پھر پوچھا کوئی بوائے فرینڈ ہے تمہارا؟ وہ ایک دم بھڑک کر اٹھ بیٹھی اور تیز نگاہوں سے مجھے گھورنے لگی۔ یہ کیسا بیہودہ سوال ہے؟ اس میں بیہودہ کیا ہے؟ جنرل چیز ہے، لوگ کرتے ہی ہیں۔ اگر تم کرتی ہوگی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ اس نے کہا کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ میں ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤں؟ اس کی آنکھوں سے غصہ چھلکنے لگا تھا۔ میں نے کہا ویسے میرا ارادہ نہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا ہے اور نہ ہی کوئی تمہاری انسلٹ کرنے کا۔ مجھے سائیکالوجی میں گہری دلچسپی بھی ہے اور پکڑ بھی سمجھنا چاہتا ہوں تمہارے کیس کو، شاید کوئی صحیح صلاح دے سکوں تمہیں۔ وہ تھوڑی دیر ویسے ہی بیٹھی عجیب انداز میں مجھے دیکھتی رہی اور پھر کہا نہیں۔ میں نے کہا بس یہی تمہاری بیماری ہے،
उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, ये नैसर्गिक है, इसमें गलत कुछ भी नहीं, पर होता ये है कि समाज के बनाए नियम और अपनी इज्जत के चक्कर में सभी अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को दबाने में लग जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ऐसा न करने पर इंसान मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है। चाहे दिल दिमाग सामाजिक नियमों के चलते इस डिमांड को लाख नकारता रहे, पर शरीर तो अपनी प्रतिक्रिया देता ही है। तुम जिस उम्र में हो, गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम्हारे साथ की लड़कियों की शादी हो चुकी होगी। शाम को जब तुम बाथरूम गई थी तो तुम्हारा फ़ोन देखा था। तुम अपनी इच्छाओं को जबरन मार रही हो और यही चीज़ तुम्हारे शरीर को गला रही है। अब वो गहरी दिलचस्पी से मुझे देखने लगी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपसे इस सब्जेक्ट पर कभी बात करूँगा। मैंने कहा, लेकिन कर सकती हो। हमारी उम्र के फ़र्क और रिश्ते को भूल जाओ और भरोसा रखो, एक एक्सपर्ट दोस्त की तरह तुम्हारे काम आ सकता हूँ। उसने कहा, मैं घर पे रहती हूँ, घर से निकलने का मौका रेयर ही मिलता है। ऐसे में किसी से कोई दोस्त बनाऊँ भी तो मिल पाना ही मुश्किल होगा। उसने कहा, मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरे लिए कभी घर से निकलना मुमकिन भी होता है तो वो ही बेकार साबित होते हैं। उसने कहा, बस एक बार ग्रेजुएशन के 1 साल बाद मैंने एक कॉल सेंटर में नौकरी कर ली थी। वहीं काम करने वाला लड़का था, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा लंबा चला भी नहीं। 7 महीने बाद कॉल सेंटर ही बंद हो गया और वो लड़का नई नौकरी के चक्कर में लखनऊ शिफ्ट हो गया और मैं घर पे बैठ गई। मैंने कहा, तो फिर कहीं और भी तो नौकरी कर सकती थी। उसने कहा कि कर सकती थी, लेकिन कहीं पर नौकरी पसंद नहीं आई तो कहीं नौकरी देने वालों को मैं पसंद नहीं आई। अब यहाँ देखती हूँ कि होता क्या है। मैंने कहा, अगर यहाँ बात न बन पाए तो कह देना कि मैं इटावा में नौकरी करूँगी और यहाँ मैं नौकरी की भी सेटिंग करवा दूँगा और रहने की भी। घर में कोई विरोध करे तो कह देना कि या तो शादी ही करा दो या फिर नौकरी करने दो, क्योंकि घर पर खाली नहीं बैठ सकती। और रही बात तुम्हारे घर वालों की, तो उन्हें मैं खुद कन्वेंस कर लूँगा। मैंने कहा, तुम्हें अजीब लग रहा हो तो सो जाओ, वैसे भी जो जानना और समझना था वो हो चुका है। उसने कहा, मैं अपनी बात कर रही हूँ भाईजान, अब जो सब्जेक्ट छेड़ दिया है उसके बाद नींद कहाँ आएगी। अब तो खुद ही दिल कर रहा है और बातें करने का। उसने कहा, आप अपने बारे में बताओ, आपकी कैसी गुजरती है? शादी तो आपकी भी नाकाम हुई। मैंने कहा, मैं तो मर्द हूँ, मर्द कब बंदिश में रहता है और कब परवाह ही करता है। उसने कहा, काश लड़की को भी समाज इतनी छूट देता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ रह गई तो जो भी इच्छा होगी बताना, हर ख्वाहिश पूरी करने की गारंटी है। मैंने कहा कि अगर ये बात तुम पहले समझ जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। उसने कहा, फ्रस्ट्रेशन में इतनी गहराई से सोच ही न पाई और आपके जैसे गाइड करने वाला कोई था भी नहीं। मैंने कहा, मगर अब भी संभावना है कि तुम अपने आप को ठीक कर सकती हो। उसने कहा, कैसे? प्लीज़ बताइए ना। मैंने कहा, पहले तो अपने दिमाग से निगेटिविटी निकाल दो सारी। शादी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, दिमाग में बिठा लो कि तुम्हें शादी करनी ही नहीं है और तुम खुद नौकरी करके अपना गुजारा करने में सक्षम हो। क्या होगा, लोग पीठ पीछे बातें ही तो बनाएंगे, बनाने दो। ये बातें तब मैटर करती हैं जब इन पर ध्यान दो। तुम उनके लिए ये सोच लो कि ये लोग तुम्हारी शराफत के बावजूद आज तक शादी ना करा सके, और क्या गारंटी है कि नज़दीकी भविष्य में करा भी पाएंगे। थोड़ी हल्की फुल्की योगा टाइप एक्सरसाइज करो, पर घुटो मत। उसने कहा, शुक्रिया भाई, आज पहली बार खुद में इतनी पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर रही हूँ। मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगी। मैंने कहा, जैसा भी है ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम जब चाहो इसे बेहतर बना सकती हो। रिजवाना ने कहा, ये वाली नौकरी मिल भी गई तो छोड़ दूँगी और घर पर यही बताऊँगी कि नौकरी नहीं मिल सकी। तुम तब तक यहीं पर कोई नौकरी ढूंढ कर ऑफ़र कर दो मुझे, फिर मैं ज़िद करूँगी यहाँ नौकरी करने की। जाहिर है कि ऐसे तो कोई न मानेगा,
लेकिन तुम अपने तरीके से समझाना तो समझ जाएंगे और फिर मुझे यहाँ आने देंगे। खुद नौकरी करके पैसा इकट्ठा कर लूँगी, आज़ाद ज़िंदगी में खुश रहूँगी और मन मुताबिक काम करके खिल जाऊँगी। तो एक संभावना है भी कि शायद शादी के लिए कोई मुर्गा शहीद भी हो जाए। मैंने कहा अब सो जाओ, थकान काफ़ी हो गई है, कल बात करते हैं। फिर हम लोग सो गए और अगली सुबह मैंने उसे ग्वालियर जाने के लिए ट्रेन में बिठा दिया। इसी बीच मैं उसके लिए नौकरी ढूंढता रहा था और वो भी खाला खालू को इस बात के लिए तैयार करती रही थी कि अगर इस बार ये नौकरी ना मिली तो वो लोग उसे इटावा ट्राई करने देंगे। फिर हुआ वही जो उसने पहले से ही सोच रखा था। उसने जिस नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था वो मिल तो गई थी, लेकिन अब उसे वो नौकरी नहीं करनी थी। उसने घर वालों को यही कहा कि वो नौकरी उसे नहीं मिली और अब उसने मुझे कह दिया है कि मैं उसके लिए कोई नौकरी देखूं। घर वाले तो इनकार इकरार की हालत में नहीं थे और एक हफ्ते बाद ही मेरी कोशिशों से उसके लिए एक अच्छी खासी नौकरी का प्रबंध भी हो गया। अब उसने उस नौकरी के लिए ज़िद पकड़ ली तो खाला खालू ने मुझसे बात की और मैंने उन्हें समझाया कि उसे ये नौकरी करने दीजिए या फिर पॉसिबल हो तो उसकी जल्द से जल्द शादी करा दीजिए, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि लड़की घर पर बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो रही है, जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बाहर रहेगी, नौकरी करेगी, लोगों से घुलेगी मिलेगी तो कम से कम उसमें ज़िंदगी के लिए चाहत पैदा होगी जो उसके अंदर मर चुकी है। और यहाँ की फ़िक्र आप लोग मत कीजिएगा, यहाँ मैं उसके गार्जियन की भूमिका निभाऊंगा और न सिर्फ उसके रहने की जगह पर नज़र रखूंगा और उसके काम की जगह पर भी मेरी नज़र रहेगी। जैसे कि उम्मीद थी वो लोग मेरे भरोसा दिलाने पर इस बात के लिए राज़ी भी हो गए। अब यहाँ उसके रहने के लिए मैंने पास के ही मोहल्ले में एक घर का चुनाव किया, जहाँ एक बुज़ुर्ग दंपत्ति रहते थे जिनके बेटे यूएस में रहते थे और उन्होंने अपने बड़े से घर को पीजी बना दिया था लड़कियों के लिए। हालांकि मैंने उन आंटी को 1 महीने का किराया दे दिया, लेकिन उनसे यही कहा कि मेरी बहन 1 महीने बाद यहाँ रहना शुरू करेगी। वजह ना उन्होंने पूछी और ना मैंने उन्हें बताई। अब इस 1 महीने के लिए उसका ऐसा जुगाड़ बनाना था कि वो ना सिर्फ जी भर के जी ले, बल्कि उसे हर तरह की सुविधा भी हासिल हो, और इसके लिए मैंने पहले ही तैयारी कर रखी थी। अब रिजवाना ऑफिस से लौटने के बाद वो योगा करती जो मैंने उसे बताई, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती, खूब खुश रहती और अच्छे से खाती पीती। अब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल था। इसका सकारात्मक असर उसके शरीर पर पड़ा और वो धीरे धीरे फिर से सेहतमंद हो गई। धीरे धीरे हम दोनों फिर अपनी दुनिया में व्यस्त और मस्त हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम ज़ैनब है और मैं 18 साल की हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरी अम्मी शबनम एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की टीचर हैं और मेरे पापा दुबई की एक कंपनी में हैं। वो साल 2 साल में इंडिया आया करते हैं और कई दिनों के लिए ही आते हैं। जब वो घर आते थे तब अम्मी बहुत खुश रहती थी, लेकिन उनके जाने के बाद अम्मी बहुत उदास हो जाती थी। हमारा घर शहर की आबादी से दूर था। हम किराए के मकान में रहते थे। ये घर पापा के दोस्त अकबर अंकल का था। अकबर अंकल पापा के दोस्त थे। यही वजह थी कि वो हम लोगों से किराया नहीं लिया करते थे। अकबर अंकल हमारे घर अक्सर आया करते थे। उनके आने पर अम्मी बहुत खुश रहती थीं। उनके आने से अम्मी का अकेलापन दूर हो जाया करता था। कभी कभी हम लोग अकबर अंकल के साथ बाहर उनकी कार से आउटिंग पर भी जाते थे। धीरे धीरे वो हमारे साथ बेहद घुल मिल गए थे। एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो देखा कि मेरे पापा के दोस्त अकबर अंकल आए हुए हैं। अम्मी दोपहर का खाना बना रही थीं
میں نے اپنا اسکول بیگ کمرے میں رکھا اور کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن اندر کا نظارہ دیکھ کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں نے چپکے سے کچن میں جھانک کر دیکھا تو میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری ایک اور رومانچک کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ میری امی ایک کالج میں ٹیچر تھیں۔ وہ کھلے وچاروں والی مہیلا تھیں، لیکن مجھے پھر بھی اپنی امی سے یہ امید نہیں تھی۔ ابھی اسکول سے آ کر میں نے اپنا ڈریس بھی نہیں بدلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امی اپنے کچن سے باہر آ گئی تھیں۔ انہوں نے کھانا لگایا اور مجھے آواز دی۔ ہم تینوں نے مل کر لنچ کیا، پھر میں ٹی وی دیکھنے لگی۔ امی اور انکل آرام کرنے لگے۔ پھر رات کو اکبر انکل، امی اور میں کھانا کھا کر 10 بجے سونے لگے۔ مجھے نیند تو آ نہیں رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے ایسے ہی بیت گئے۔ میری آنکھ ہلکی سی لگنے لگی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد میرے کانوں میں چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز سنائی پڑی۔ میری نیند کھل چکی تھی۔ میں نے دھیرے سے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی، جو کہ امی کے کمرے کی طرف کھلتی تھی۔ میری امی اور اکبر انکل دونوں باتیں کر رہے تھے۔ انکل نے کہا، شبنم، ہم دونوں جو کر رہے ہیں، تمہارے شوہر الطاف میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ دبئی جانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کا اور آپ کی بیٹی زینب کا اچھے سے خیال رکھوں۔ اکبر انکل نے اپنی بات کو زور دیتے ہوئے امی کو سمجھایا تھا۔ انکل بھی ان کے من کی بات سمجھ گئے۔ ایک دن میں جب صبح اٹھی تو دیکھا کہ اکبر انکل لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے انکل سے پوچھا، امی کہاں ہیں؟ انکل بولے، وہ تو اپنے کالج چلی گئیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ انکل نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں چائے لے کر آ گئی تھی۔ انکل مجھے پاس میں بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے۔ میں وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کل رات کو تم سو رہی تھیں یا جاگ رہی تھیں؟ انکل نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوال کیا۔ اچانک اس طرح کے سوال سے میں سکپکا گئی تھی۔ انکل کو شاید یہ معلوم پڑ گیا تھا کہ امی اور ان کی باتیں میں سن چکی ہوں۔ انکل نے کہا، دیکھو زینب، میں تمہارا انکل ہوں۔ تمہاری امی کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ تم بڑی ہو گئی ہو، سمجھدار ہو، اس بات کو سمجھ سکتی ہو۔ میں نے بنا کوئی جواب دیے اپنا سر نیچے جھکا لیا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، ویسے کتنے سال کی ہو گئی ہو تم؟ میں نے کہا، پچھلے مہینے میں 18 سال کی ہوئی تھی۔ انکل نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر کہنے لگے، تم بڑی ہو گئی ہو میری بچی، تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے تیری امی سے بات کرتا ہوں۔ پھر انکل نے مجھے بڑے پیار سے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں ہلکی سی آواز میں بولی، انکل پلیز مجھے جانے دو۔ انکل نے کہا، کچھ نہیں ہوگا تجھے میری گڑیا رانی، پر میں شرما رہی تھی کیونکہ وہ میرے انکل تھے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کی میں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ شام کے 9 بج رہے تھے۔ اکبر انکل کی کار دروازے پر آ کر رکی تھی۔ انکل کا رات کو اس طرح آنا کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن میں نے دروازے پر جا کر دیکھا کہ آج انکل کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ اکبر انکل بولے، ہائے شبنم، کیسی ہو؟ اس سے ملو، یہ میرا دوست اکرم ہے۔ امی نے دھیرے سے ہائے کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ پھر انکل کہنے لگے، اکرم، یہ میری پیاری سی ننھی سی بھتیجی زینب ہے۔ میں بنا جواب دیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور کھڑکی سے ان کی باتیں سننے لگی تھی۔ اکبر انکل امی کو کمرے میں لے کر گئے تھے اور اکرم انکل برآمدے میں ہی رکے ہوئے تھے اور بولے، شبنم، یہ میرا دوست اکرم ہے، آج رات یہ ہمارے ساتھ ہی رکے گا۔ انکل امی کو سمجھا بجھا رہے تھے، لیکن امی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ امی نے کہا، تمہاری بات الگ ہے، تم میرے شوہر کے دوست ہو، لیکن ایک غیر مرد کو گھر پر نہیں روک سکتی۔ امی پریشانی سے اپنا سر پکڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اکبر انکل بولے، میں اور اکرم بچپن کے دوست ہیں۔ میں نے اکرم کو بولا ہے کہ تم میرے بہت اچھے دوست الطاف کی بیوی ہو۔ امی نے کہا، تم نے مجھ سے پوچھ کر بولا تھا کیا؟
अम्मी ने अपनी शंका जाहिर करते हुए जवाब दिया कि घर में मेरी बेटी ज़ैनब भी है, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, अब वो छोटी नहीं रही है। अकबर अंकल ने कहा, हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वो बड़ी हो गई है, उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं उसको संभाल लूँगा। फिर अम्मी धीरे धीरे राज़ी हो गई थीं। रात को अम्मी मेरे कमरे में आईं और मुझे ठीक से सुला दिया और लाइट बंद करके अपने कमरे में चली गईं। अकबर अंकल शायद शराब पी रहे थे। उसका ये रूप भी मेरे सामने आने लगा था। मुझे उनके कमरे से अब अकरम अंकल की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। अचानक मेरा हाथ खिड़की से लगा, जिसको अम्मी ने सुन लिया था। मैं जान नहीं पाई कि क्या हुआ, लेकिन अगले दिन अम्मी का व्यवहार कुछ बदला बदला सा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अम्मी से पूछा, क्या बात है अम्मी, आज आप बहुत उदास हो। अम्मी ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ देर के बाद अम्मी ने मुझे अकेले में बुलाया और बोली, कल रात। इतना सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, मेरा चेहरा लाल हो गया। तब अम्मी ने कहा, देखो बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा बाहर रहते हैं। उनको दुबई गए हुए 3 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। ये सब कहते हुए अम्मी का गला भर गया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने पूरी सच्चाई बताई कि तुम्हारे अब्बू को दुबई में किसी कारण पुलिस ने पकड़ लिया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने तुम्हारे अंकल से बात करके कोई रास्ता निकालने में लगी थी। तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ नहीं है, और इसलिए मैं कई रातों से अच्छे से सो भी नहीं पाई हूँ, जिसके लिए मैंने अकबर और अकरम दोनों से पैसे की मदद ली है, लेकिन अब मैं उन्हें लौटा नहीं पा रही हूँ और वो लोग मुझे परेशान करने लगे हैं। अम्मी बुरी तरह टूट चुकी थीं। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और कहा, मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं है अम्मी। मेरी इस बात से उनका दिल कुछ हल्का हुआ था और वो बोली, बेटी तुम नाराज़ नहीं होना मुझसे। मैंने कहा, नहीं अम्मी, इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है, ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। अम्मी के चेहरे पर कुछ मुस्कान आई। मैं उस वक्त कुछ और नहीं बोली। अब मैं अम्मी की हमराज हो गई थी। मैंने उनसे कहा, अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे आपसे बस इतना कहना है कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपसे बेहद प्यार करती हूँ। मुझे आपका सहारा चाहिए, आप भी खुद को अकेला मत समझो। अम्मी ने मुझे गले से लगाया और महसूस किया कि उनका एक मजबूत और सच्चा सहारा तो हमेशा से उनके पास था, उनकी अपनी बेटी। इस अनुभव ने उन्हें एहसास कराया कि अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार के मान और सुरक्षा के लिए उन्हें खुद मजबूत बनना होगा। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वो किसी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं रहेंगी जो उन्हें और उनकी बेटी के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाले। उन्होंने अकरम अंकल से खुलकर बातचीत की और उनसे कहा कि अब वो उनके साथ कोई और संपर्क नहीं रख पाएंगी। उन्होंने खुद को मेरे साथ एक नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार किया और अपनी कमज़ोरियों को पीछे छोड़कर एक नई राह अपनाई। इस घटना के बाद मैं और मेरी अम्मी ने एक दूसरे को एक मजबूत सहारा बनाया और साथ मिलकर जीवन के संघर्षों का सामना करने का निश्चय किया। अब हमारे जीवन में एक नई दिशा और नई शुरुआत थी, जहां हम एक दूसरे का सहारा बनकर खुद को मजबूत और सुरक्षित महसूस कर सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूजा धीरे धीरे सरक कर अपने पापा से चिपक कर बैठ जाती है और फिर हिचकिचाते हुए कहती है, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अब मेरी बारी है। पापा, जिस सुख से आप मेरी वजह से दूर रहे, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको वो सुख मैं दूँ। पूजा का पिता कहता है, ऐसा कौन सा सुख बेटा? पूजा कहती है, औरत का सुख पापा। आप उस सुख के लिए तड़पते रहते हो, मैं आपका ये दुख सहन नहीं कर सकती।
पूजा का पिता अपनी बेटी से कहता है, तुम मेरी बेटी हो और ये गलत है। पूजा कहती है, मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मैं आपको तड़पता हुआ नहीं देख सकती। पहले मुझे अगर मालूम होता तो आपको दुखी नहीं होने देती। तभी पूजा अपनी साड़ी का पल्लू को नीचे गिरा देती है और अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पापा, आज से मैं आपकी हूँ। आपने इतने सालों से अपनी इच्छा को दबा कर रखा था, लेकिन अब आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। पूजा का पिता अपना हाथ खींचना चाहता था, लेकिन बहुत सालों बाद किसी लड़की के कोमल हाथों का स्पर्श पाकर वो सब कुछ भूल जाता है और उसकी बातों में आने लगता है। उसका गोरा बदन देखकर उसके जज्बात भड़कने लगते हैं। तभी उसे याद आता है कि पूजा तो मेरी बेटी है। वो उसे डांट कर भगा देता है। पूजा अपने कमरे में जाते हुए कहती है, पापा, मैं दरवाज़ा खोल कर सोऊंगी। अगर आपका इरादा बदल जाए तो आ जाना। पवन ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर लेट गया, लेकिन पवन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बार बार पूजा के कोमल हाथों का स्पर्श और उसका पल्लू गिराना और उसका गोरा बदन, ये सारा मंजर पवन की आंखों के सामने घूमने लगता है। आधी रात तक पूजा का पिता करवटें बदलता रहता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन हार कर वो धीरे से अपनी बेटी के कमरे में चला जाता है और फिर थोड़ी ही देर में दोनों बाप बेटी एक एक करके सारे कपड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, पवन नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ नोएडा में रहता था। उसकी उम्र 45 साल के आसपास थी। पवन पेशे से रिटायर्ड टीचर था। पवन दिखने में कुछ खास नहीं था, लेकिन पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। पवन के घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, पवन और उसकी बेटी पूजा। 10 साल पहले पवन की पत्नी और उसके बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई थी और फिर पवन ने दोबारा शादी नहीं की थी। अपनी पत्नी की मौत के बाद पवन बिल्कुल बिखर गया था। पवन ने जवानी में ही अपनी पत्नी को खो दिया था। जब उसकी पत्नी की मौत हुई थी तब पूजा महज 5 साल की थी। अब पूजा की जिम्मेदारी पवन पर आ चुकी थी और पवन ने अपनी बेटी पूजा को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला पोसा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उसकी बेटी भी दिन ब दिन बड़ी होती चली गई। जब पूजा 15 साल की होती है तो उस पर जवानी का रंग बिखरने लगता है। पूजा दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती जा रही थी। पूजा का जिस्म दिन ब दिन उभरता जा रहा था। पूजा एकदम जवान लड़की बन चुकी थी, जिसे देखकर हर कोई उसे अपना बनाने की चाहत रखता। पूजा बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई थी। पूजा पढ़ने में कम ही ध्यान देती थी, ज़्यादातर फ़ोन में ही व्यस्त रहती थी और फ़ोन पर हर तरह की वीडियोस देखती थी। पवन ने अपनी बेटी को किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं लगाई थी। पूजा के मन में जो आता वो करती थी। पूजा ज़्यादातर जीन्स टॉप या जीन्स शर्ट पहनती थी और जीन्स के साथ जब हाई हील के सैंडल पहनती थी तो एकदम हुस्न की परी लगती थी। पूजा छोटी उम्र में ही एक 20 साल की लड़की लगने लगी थी। उसका भरा हुआ शरीर, उसका गोरा बदन, जिसे देखकर उसका पिता ही उसकी वासना में जलने लगा। ये बात 1 साल पहले की है, जब पवन का एक दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आया था। पवन और उसका दोस्त रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों बातों में पवन की बीवी जानवी की बात होने लगती है। पवन का दोस्त उसे पूछता है कि तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब पवन कहता है, पूजा की वजह से नहीं की, क्योंकि क्या मालूम दूसरी बीवी कैसी होगी और उसके साथ कैसा सलूक करेगी। वो पता नहीं मेरी बेटी को प्यार करेगी भी या नहीं। फिर उसका दोस्त पवन से पूछता है कि आपकी पत्नी को गए हुए कितने साल हो गए हैं, तो क्या आपका मन नहीं करता कि मैं भी किसी औरत के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करूं? तभी पवन कहता है, दिल तो बहुत करता है और सारी सारी रात जागता रहता हूं। दिल में बहुत दर्द होता है, लेकिन पूजा के सामने जाहिर नहीं होने देता। अंदर से बहुत दुखी हूं, लेकिन पूजा के सामने खुश रहता हूँ। उसका दोस्त कहता है कि किसी वैश्या या फिर कॉल गर्ल के पास क्यों नहीं चले जाते, उनके पास जाकर अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो।
तभी पवन कहता है कि कॉलगर्ल के पास जाने से बेहतर मैं घर पर ही ठीक हूँ, क्योंकि उनके पास जाने से कोई बीमारी भी लग सकती है, या अगर किसी को मालूम हुआ तो पूजा को बहुत दुख होगा। लेकिन पवन को ये मालूम नहीं था कि पूजा ये सारी बातें छुपकर सुन रही है। पूजा अपने पिता की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और मन ही मन में सोचती है कि मेरे पिता मम्मी के बिना कितने दुखी और परेशान हैं। पूजा अपने मन में सोच लेती है कि मैं अपने पिता की हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पूजा का पिता रात को खाना खाकर अपने रूम में चला जाता है और रूम में बैठकर किताब पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी पूजा अपने पिता के कमरे में दूध लेकर जाती है। पूजा ने उस रात अपनी मम्मी की लाल साड़ी पहनी हुई थी, जो उसके पिता को बहुत पसंद थी। पूजा की मम्मी अपनी शादी की पहली सालगिरह पर वो लाल साड़ी पहनकर अपने पति के सामने आई थी, जिसे देखकर उसका पति बहुत खुश हुआ था और उसने अपनी पत्नी को उस रात वो सारे सुख दिए थे जो हर एक औरत अपने पति से चाहती है। आज पूजा गलती से अपनी मम्मी की साड़ी पहनकर अपने पिता के सामने चली जाती है और उसके पल्ले से पूजा का पेट साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका ब्लाउज़ पीछे से खुला हुआ था और आगे से गला बहुत गहरा था। ब्लाउज़ के पीछे सिर्फ इलास्टिक की 2 बारीक पट्टियां थीं और आगे से पूजा का पूरा वजूद साफ साफ दिखाई दे रहा था। पूजा को उस साड़ी में देखकर एक बार तो पवन को लगा कि उसके सामने उसकी बीवी खड़ी है। उस दिन पवन अपनी बेटी के बदन को गौर से देखता है। वो बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई थी। पूजा अपने पिता के सामने खड़ी थी, लेकिन अब पवन को वो अपनी बेटी नहीं बल्कि बीवी लग रही थी। पूजा अपने पिता के बेड पर बैठ जाती है और कहती है, क्या सोच रहे हो पापा? तभी पवन कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। पूजा कहती है, मुझे मालूम है पापा, आपको मम्मी की बहुत याद आ रही है। तभी पूजा का पिता कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी के बिना बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। और पवन चुप करके दूध पीने लगता है और अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है। पूजा अपने पिता को थैंक यू कहती है। तभी उसके पिता कहते हैं, बेटा किस बात के लिए थैंक यू? तब पूजा कहती है, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और आप इतना दर्द दिल में छुपाकर मेरे सामने खुश रहते हो। तभी पूजा का पिता कहता है कि बेटा ऐसा कोई दर्द नहीं है बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। पूजा कहती है, मैंने आपकी और अंकल की सारी बातें सुन ली थी। मुझे सब पता है कि आप अंदर से कितने दुखी हो। फिर पूजा का पिता कुछ बोल नहीं पाया और पूजा सरक कर अपने पिता के पास आते हुए बोलती है, पापा जिस सुख से आप मेरी वजह से दूर रहे, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको वो सुख मैं दूँ। पूजा का पिता कहता है, ऐसा कौन सा सुख बेटा? पूजा कहती है, औरत का सुख पापा। आप उस सुख के लिए बहुत तड़पते हो, मैं आपका दुख सहन नहीं कर सकती। पूजा का पिता अपनी बेटी से कहता है, तुम मेरी बेटी हो और ये सब गलत है। पूजा कहती है, मैं जानती हूँ ये सब गलत है, लेकिन मैं आपको तड़पता हुआ नहीं देख सकती। पहले मुझे मालूम नहीं था, अगर मालूम होता तो आपको ये दुख होने ही नहीं देती। तभी पूजा अपनी साड़ी का पल्लू को नीचे गिरा देती है और अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पापा आज से मैं आपकी हूँ। आज आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए आप इतने सालों से तड़प रहे थे। पूजा का पिता अपना हाथ खींचना चाहता था, लेकिन बहुत सालों बाद किसी लड़की के कोमल हाथों का स्पर्श पाकर वो सब कुछ भूल जाता है और उसकी बातों में आने लगता है। तभी उसे होश आता है कि सामने मेरी बीवी नहीं बल्कि बेटी है। तो वो अपना हाथ खींच लेता है और उसको डांट कर वहाँ से जाने को कहता है। क्या कर रही हो पूजा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें होश भी है क्या? ये तुम क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से या फिर तुम्हें थप्पड़ मारूं। जाते जाते पूजा कहती है, मेरे रूम का दरवाज़ा खुला है, अगर दिल करे तो आ जाना। पूजा के पापा ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और बेड पर लेट गया। पवन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बार बार पूजा के कोमल हाथों का स्पर्श और उसका पल्लू गिराना और उसका गोरा बदन उसे याद आ रहा था।
आधी रात तक पूजा का पिता करवटें बदलकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब फिजूल रहा। अब पूजा के पिता के अंदर सारी इच्छाएं जागने लगती हैं। पूजा का पिता अपने रूम से उठकर पूजा के रूम में आ जाता है। पूजा वही साड़ी पहने लाइट जलाकर सो रही थी। साड़ी का पल्ला साइड पर गिरा हुआ था और वो बाईं तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। दूधिया लाइट में उसका वजूद शीशे की तरह चमक रहा था। उसके बदन का नज़ारा देखकर उसका पिता का मन उसकी जवानी का भरपूर आनंद लेना चाहता था और उसके पीछे से चिपक कर लेट जाता है। पूजा अपने पिता के हाथ का स्पर्श पाते ही बोलती है, मुझे मालूम था पापा कि आप ज़रूर आओगे। तभी उसका पिता कहता है, मुझसे रहा नहीं गया बेटा, बहुत सालों बाद किसी लड़की के बदन को हाथ लगाया है। पूजा ने कहा, आप जो चाहें कर सकते हो पापा। फिर कुछ ही देर में दोनों सारी मर्यादाओं को भुलाकर एक दूसरे में समा जाते हैं। उस रात पिता और बेटी दोनों मिलकर एक बाप बेटी के पाकीज़ा रिश्ते को दागदार बना देते हैं। तो दोस्तों, किसी भी लड़की को अपने पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और पिता को भी सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। वैसे आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं बाहर हॉल में सो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरी चाची मुझे देखकर कहने लगी कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो एक काम कर, यहाँ पर मत सो, पूजा के पास चला जा, उसके साथ जाकर लेट जा। क्योंकि हमारे घर में 2 ही कमरे थे और पूजा मेरी चाची की छोटी बहन थी। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश था। मैं अपनी चाची की बात मानकर पूजा के पास जाकर लेट गया। पूजा लेटी हुई थी और साइड में मैं भी था। जैसे ही आधी रात हुई, मैंने पूजा की चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। पूजा भी जाग रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि पूजा भी कुछ चाहती है। बस फिर क्या था, मैंने एक ही बार में उसको, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मैं अपनी चाची के पास रहता था। मेरी चाची की छोटी बहन बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन मुझे उन्हें सुंदर कहने में बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने ऐसा कहा तो कहीं चाची को न बता दे। आज तक मैंने चाची की बहन से इस तरह की बातें नहीं की थी। हम जॉइंट फैमिली में थे। मेरे पापा और चाचा जी खेती बाड़ी का काम करते थे और वो ज़्यादातर खेत पर ही रहा करते थे। मेरी चाची और मेरी मम्मी घर पर ही रहती थी। मेरी चाची का एक बेटा था जिसकी उम्र करीब 8 साल थी। मेरी चाची 2 बहनें थीं। चाची की उम्र 29 साल थी और उनकी छोटी बहन की उम्र करीब 23 साल थी। चाची की बहन को तो मैंने चाचा की शादी वाले दिन ही देखकर अपना दिल हार बैठा था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे। उसी वक्त चाची ने मुझे बताया कि मंजीत का जन्मदिन है। मंजीत मेरी चाची का बेटा था और उसकी मौसी को यहाँ आना है। इसलिए मेरी चाची कह रही थी कि मैं पूजा को अपने साथ घर पर लेकर आ जाऊं। बस फिर क्या था, मैंने ये सुनते ही शादी जैसी चाहत मेरे दिल में चढ़ गई। मैंने वैसे ही चाची से पूछ लिया कि चाची, आपके घर वालों में से कोई आ रहा है क्या? चाची ने कहा, नहीं, उनको नहीं आना, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन छोटी बहन ने कहा है कि मेरे इकलौते भांजे का जन्मदिन है तो मैं ज़रूर आऊँगी। जब वो बस स्टैंड पर आ जाएगी तो तुम उसे ले आना। मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है। बस स्टैंड पर आकर वो तुम्हें फ़ोन कर देगी। मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अपनी सुंदर सी शर्ट और पैंट निकाल कर प्रेस करने लगा, क्योंकि आज मैं चाची की बहन को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था। मैं उन्हें काफ़ी टाइम से पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे पसंद करती है भी या नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से उनके फ़ोन आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि वो जल्दी से मुझे फ़ोन करे और मैं दौड़ता हुआ उनके पास चला जाऊं और उन्हें अपने गले से लगा लूं।
लेकिन गले लगाना तो मैं सपने में ही सोच सकता था। असल में मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था। पर मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों पर प्रेस की और बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। वैसे तो मैं अपना फ़ोन नहाते वक्त बाथरूम से बाहर ही रखता था, लेकिन आज मुझे पूजा के आने की इतनी ज़्यादा शिद्दत थी कि मैंने बाथरूम में ही फ़ोन ले लिया। मुझे ये था कि अगर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरा फ़ोन मेरे पास ना हुआ तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाएं और फ़ोन करके चाची को ना बता दें। बस इसी वजह से मैं फ़ोन बाथरूम में ही अंदर ले गया। मैं जल्दी से नहाकर अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने एक महंगा परफ्यूम लगाया था जिसे मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया था। मेरे बर्थडे पर वो परफ्यूम मुझे मेरे एक जिगरी दोस्त ने गिफ्ट में दिया था, जिसे आज स्पेशली मैंने चाची की बहन की आने की खुशी में लगाया था। परफ्यूम से ज़्यादा तो चाची की बहन मेरे लिए स्पेशल थी, जिसे मैं काफ़ी समय से मिस कर रहा था, लेकिन कभी भी उनके साथ बात नहीं हुई थी और आज मुझे उनके साथ कई सारी बातें करने का मौका मिल रहा था। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था कि तभी मुझे एक नए नंबर से कॉल आई। मुझे पता था कि ये किसका नंबर है, क्योंकि चाची की बहन के अलावा मुझे इस वक्त कौन फ़ोन कर सकता था। इसलिए मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से बड़ी मीठी सी आवाज़ सुनकर मैं दंग रह गया। वो सच में चाची की ही बहन थी। उन्होंने कहा, क्या आप राहुल बोल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ जी। वो बोली, मैं पूजा हूँ और मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे आकर ले जाओ। इतना सुनते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मैंने कहा, आप इंतज़ार करें, मैं बस अभी आया, बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। उन्होंने कहा, ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगाया हुआ था, पर मैं फिर से परफ्यूम छिड़क कर निकल पड़ा। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी चाची की बहन को लेने चला गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उन्हें देखने की, क्योंकि आज मैंने उन्हें काफ़ी समय बाद देखना था। चाची की शादी के बाद मैं हॉस्टल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था और वहाँ से मैं काफ़ी सालों बाद घर आया था। इसी वजह से मेरी उनसे मुलाकात न हो सकी थी और ना ही हमने एक दूसरे का नंबर लिया था जिससे हम फ़ोन पर बात करते। इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 15 मिनट का रास्ता था। मैं जल्दी से तेज़ बाइक चलाकर उन्हें बस स्टैंड से लेने के लिए पहुंच गया। जैसे ही मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो चाची की बहन को देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने हेयर कटिंग करवाई हुई थी। हेयर कटिंग करवाने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहन रखा था जिसमें वो पूरी तरह से आग लग रही थी। उस दिन तो उन्होंने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। मैं जल्दी से उनके पास गया और मैं उन्हें देखता ही रह गया। वो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद थी। वो जितनी सुंदर थी, मैंने अभी तक कोई लड़की नहीं देखी थी। मैंने उसके पास जाकर उसका बैग पकड़ लिया और उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा। मैंने उसका सामान अपने आगे रख लिया और ख़ुद थोड़ा पीछे होकर बैठ गया। वो भी पीछे की ओर बैठ गई। मैं जानबूझकर गाड़ी चलाते वक्त बार बार ब्रेक लगा रहा था ताकि वो मुझसे टकरा जाए, क्योंकि मैं तो उसे छू नहीं सकता था, लेकिन मैंने इस तरह की हरकतें की ताकि वो मुझे खुद ही छू ले। मैं बाइक के शीशे में उसे देखता रहा। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे लेकर आ रहा था तो मैं बाइक इतनी धीरे चलाने लगा था कि अगर कोई भी चलता हुआ भी मेरे साथ चला जाता तो वो मुझसे पहले पहुंच जाता। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ वक्त बिता सकूं। आखिरकार उसने मुझसे कह दिया, इससे अच्छा तो मैं पैदल चलकर चली जाती हूँ। मैंने मजाक में कह दिया, मैं पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। वो बोली, आपसे ज़्यादा तो तेज़ मैं चला लेती हूँ। मैंने कहा, फिर मुझे भी सिखा दो ना। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें मेरी तरह तेज़ ड्राइविंग सीखनी है तो तुम लोगों के एक्सीडेंट ही करोगे। उसकी ये बात सुनकर मेरा तो हंसना बंद ही नहीं हो रहा था। वो भी हंस रही थी और हंसते हुए वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। मेरी बातें सुनकर वो शर्माने लगी। इसी तरह की बातें करते करते हम घर पहुंच गए। चाची अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई।
खुशी के साथ वो एक दूसरे के गले मिलने लगी। मेरी चाची का बेटा भी अपनी मौसी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अगले दिन चाची के बेटे का जन्मदिन था। घर में तैयारियों का माहौल था, क्योंकि हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी दोस्तों को बुलाया था। रात के समय पार्टी शुरू हो गई। जन्मदिन मनाने के लिए मैंने मंजीत को कपड़े लाकर दे दिए थे। मैं चाहता था कि चाची की बहन सबसे पहले तैयार हो जाए, ताकि मैं उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन सकूं। शायद ऐसी फीलिंग्स लड़कियां रखती होंगी, लेकिन मैं ऐसी फीलिंग कर रहा था। वो अनोखी थी। मैंने देखा कि रात की पार्टी में उसने येलो कलर का सूट पहना हुआ था। उसमें वो बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। जब मुझे पता चला कि उसने येलो रंग का सूट पहना है, तो मैंने भी उसी समय येलो कलर की शर्ट खरीद ली। मैं सभी के सामने अपनी ये कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जानता था कि चाची की बहन ने भी वही रंग पहना है। मैंने तो पहले ही इसे सिलेक्ट कर लिया था। बहरहाल सभी ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सभी पार्टी में बिजी थे। लेकिन इस बात को चाची की बहन ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया था। रात के 12 बजे पार्टी ख़त्म हो गई और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रात के समय चाची का बेटा मेरे साथ ही सोता था, क्योंकि वो शुरू से ही मेरे साथ रहता था, और अब तो मेरे साथ सोने की आदत भी हो गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला सोता था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए ले लिया। मैं भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन आज वो जिद कर रहा था कि मैं अपनी मौसी के साथ सोऊंगा। मैंने कहा, चाची कोई बात नहीं, उसे अपनी मौसी के साथ ही सोने दो, मैं बाहर हॉल में लेट जाऊंगा। इसके बाद मंजीत अपनी मौसी के साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर लेट गया और मैं बाहर हॉल में अपना मुंह ढककर लेट गया। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वो आराम से सो जाएं। वैसे भी थोड़े टाइम बाद दिन निकल ही जाएगा। मैं अभी फ़ोन बंद करके सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी चाची मेरे पास आ गई और बोली, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं सोने दूंगी। तुम एक काम करो, तुम भी अंदर जाकर सो जाओ। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन मैंने चाची के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं चाची, इस तरह अच्छा नहीं लगता। चाची बोली, कोई बात नहीं, क्या हो गया है तुम्हें, तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना। उसी समय चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा चाची का बेटा मंजीत अपनी मौसी के साथ सो रहा था। उसी समय चाची ने अपनी बहन को जगाया और कहा, पूजा, मंजीत को थोड़ा साइड कर लो। राहुल बाहर ठंड में सो रहा था, इसलिए मैं इसे अंदर ले आई हूँ। मेरी चाची की बहन अपनी आंखों को मसलते हुए अपने भांजे की ओर देखने लगी और उसे थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया। मैं भी अपना बिस्तर लेकर एक कोने में लेट गया। हम एक बिस्तर पर ही लेटे थे, लेकिन हमारे बीच कोई ज़्यादा दूरी नहीं थी, क्योंकि मंजीत बिस्तर के किनारे पर लेटा था और हमारे बीच में पूजा लेटी थी और सबसे आखिर में मैं लेटा हुआ था। मैंने लाइट ऑफ की और फिर से बिस्तर पर आकर सो गया। मैं पूजा के सामने सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन पूजा के साथ बिस्तर पर लेटे रहने में मुझे नींद कैसे आ सकती थी। मेरा मन तो शरारत करने को कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी शुरुआत पूजा करे। शायद थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छू लिया हो। मुझे ये जानने में देर नहीं लगी कि ये पैर किसका है, क्योंकि मंजी तो साइड में लेटा हुआ था और बीच में पूजा थी। जैसे ही पूजा ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मेरे पूरे शरीर में हलचल सी पैदा हो गई। वैसे भी मैं जाग रहा था और इस हलचल को मैंने जल्दी ही महसूस कर लिया था। मैंने देखा कि कोई बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरे पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने जज्बातों पर काबू न रखते हुए जल्दी से अपना हाथ पूजा के चादर पर रख दिया। मैंने अपने हाथ को इस तरीके से रखा कि उसे ये महसूस हो कि मैं नींद में ये सब कर रहा हूँ। जिस तरह वो बार बार मेरे पैरों को छू रही थी, उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो अभी तक सोई नहीं है, बल्कि जाग रही है। मैंने धीरे धीरे ये महसूस करने की कोशिश की कि उसका हाथ कहाँ पर है, और जल्दी ही मुझे उसका हाथ मिल गया। मैंने अपने हाथ को उसके हाथ पर चलाना शुरू कर दिया।
क्योंकि मैं पहली हरकत उससे करवाना चाहता था। बहरहाल जिस तरह की सोच मैं रख रहा था वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। मुझे हैरानी तब हुई जब उसने पलटकर मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैंने अपने जज्बातों पर काबू कैसे पाया, लेकिन आखिरकार मैं भी एक मर्द था, इसलिए मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना था। शायद अब वो भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई और वो हरकत कर बैठी जिससे मैं भी अपने होश खो बैठा। फिर पूजा ने मुझे वो सुकून दिया जिसका मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी और पूजा भी बहुत खुश थी। हम सारी रात एक जगह सोते रहे। अगले दिन उसे अपने घर जाना था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसे भेजूं, इसलिए मैंने ज़िद करके उसे एक हफ्ते के लिए रोक लिया। एक हफ्ते मैंने उसके साथ मिलकर बहुत मस्ती की और एक हफ्ते बाद वो अपने घर चली गई। मैं उसे एक हफ्ते को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि उसे एक हफ्ते ने मुझे इतनी खुशी दी थी जो मैं कभी भुला ही नहीं पाऊंगा। जिस दिन मुझे नौकरी मिली उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि मैं अपनी चाची की बहन के साथ शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। एक दिन मैंने अपनी चाची को बता दिया कि चाची जी, मैं आपकी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी चाची को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरी अच्छी खासी नौकरी लग चुकी थी और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। चाची ने अपने घर के सभी लोगों से बात की और उन्होंने भी कोई एतराज़ नहीं किया। इसी तरह हमारी 1 महीने के अंदर ही शादी फिक्स हो गई और आज हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी है एक अंधे शख्स की, जो बेहद ही दिलचस्प कहानी है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। शादी की रात थी और मेरे दोस्त मुझे छेड़ रहे थे। वो सभी मेरे जिगरी यार थे। कहने लगे, तुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आता, फिर कमरे में जाकर क्या करेगा? ऐसा ना हो दुल्हन की जगह किसी 60 साल की बुढ़िया के साथ मोहब्बत भरी बातें शुरू कर दे। अरे क्या मालूम भाभी अपनी जगह किसी और को बिठा दे और मामला उलट पलट हो जाए। मैंने अपने दोस्तों पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि शर्म करो अब और अपने अपने घरों को चले जाओ, ताकि मैं भी अपनी दुल्हन के पास जा सकूं। वैसे भी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मेरा एक दोस्त माजिद कहने लगा कि तुझे रात से क्या करना है यार, तेरे लिए तो हर वक्त अंधेरा ही है, जब चाहे बीवी के पास चले जाना। माजिद की बातों पर वो सभी दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगे थे। फिर वो सब मेरे गले लगकर मुझे मुबारकबाद देकर चले गए। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो मुझे खुश करने के लिए हंसी मजाक में ये बातें कह रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद मेरा दिल घबराने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर मेरे दिल में भी था कि मैं तो अंधा हूँ। फिर अपनी बीवी के साथ किस तरह से सुहागरात मनाऊंगा, किस तरह उसे महसूस कर सकूंगा, कैसे उसके हक को अदा करूंगा। अगर मैं पैदाइशी अंधा होता तो शायद ये बात मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल न होती, लेकिन मैं कुछ अरसा पहले एक एक्सीडेंट में अंधा हो चुका था। मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, इसलिए अपनी कमी को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान रहा करता था और अभी तक इस बात का आदी नहीं हुआ था। ऊपर से अचानक से मेरी शादी हो गई, और वो भी कुछ ऐसे हालात में कि मैं खुद अभी तक हैरान था कि मेरी बीवी मुझसे शादी पर किस तरह राज़ी हो गई, क्योंकि मैंने उसे पहले देख रखा था और मैं जानता था कि वो बहुत ज़्यादा हसीन है। उसे तो मुझसे ज़्यादा बेहतर और अच्छा लड़का मिल सकता था, फिर उसने मुझ जैसे अंधे से शादी क्यों की? यही बात जब मैंने अपने दोस्तों के सामने की तो वो कहने लगे कि ये सब तो किस्मत की बातें हैं, पर तुम्हें कौन सी किसी चीज़ की कमी है? पैसे वाले हो, अपना कारोबार, बंगला, सब कुछ तो है। आगे पीछे माँ बाप की जिम्मेदारी भी नहीं है, इसलिए तुम्हारी फुप्पो ने उसे तुम्हारे साथ रुखसत कर दिया होगा। मेरी बीवी दरअसल कोई गैर नहीं,
बल्कि मेरी फप्पो की ही बेटी थी। लेकिन फिर भी मुझे ये फ़िक्र सता रही थी कि मैं अपनी बीवी के साथ मुस्तकबिल में किस तरह गुजारा करूँगा। बहरहाल मैं अपनी लाठी के सहारे कमरे में पहुँच गया। मैंने ज़ोर से अपनी बीवी को सलाम किया ताकि उसकी आवाज़ का अंदाज़ा लगा सकूं कि वो कहाँ पर बैठी है, और फिर उसके धीमे अंदाज में आने वाले जवाब ने मुझे बता दिया कि वो बिस्तर पर मेरी मुंतज़िर बैठी है। मैं अपनी स्टिक टका के बिस्तर पर पहुंच गया, उसके पास ही बैठ गया। मैं उसे देख तो नहीं सकता था, लेकिन दिल की नज़रों से महसूस ज़रूर कर सकता था। आँखों की रोशनी जाने से पहले जब मैंने आखिरी बार उसे देखा था तो वो हुस्न की जीती जागती मूरत मालूम हो रही थी। उसका वही तसव्वुर इस वक्त मेरी नज़रों के आगे था। मैंने अपनी जेब से मुँह दिखाई का तोहफ़ा निकाल कर आगे किया तो उसने खुद मेरे हाथों से उसे ले लिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराईं। मैंने तेज़ी से उसका हाथ जकड़ लिया। शायद मेरी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसके होंठों से एक सिसकी निकली। फिर मैंने धीरे से उसे अपने करीब खींच लिया। परफ्यूम की तेज़ महक ने मुझे पागल करके रख दिया था और मैंने मजबूती से उसे अपने कुशादा सीने से लगा लिया था। वो भी खामोशी से मेरे सीने में समा गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कमरे का माहौल खुद ब खुद बोझल हुआ था। उसके वजूद की तपिश मेरे जज्बात को झुलसा रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी कुर्बतों में इजाफा होता चला गया। मैंने धीरे से उसके ब्लाउज़ की डोरियों को खोल दिया, उसके पूरे वजूद को पूरी तरह अपने अंदर समा लिया। वो भी मेरे जज्बात के आगे ढेर हो गई। मैं जिस रात को अपने अंधेपन की वजह से मुश्किल समझ रहा था, वो मेरी मोहब्बत और जज्बात की शिद्दत से खुद ब खुद आसान हो गई थी। भले ही मैं उसे देख नहीं सकता था, लेकिन मैंने उसे महसूस किया था। फितरी तौर पर हमारे दरमियान से खुद ब खुद सारे पर्दे हट गए थे और हम दोनों एक दूसरे के हो गए थे। कमरे में गूंजती मेरी बीवी की धीमी धीमी आवाज़ें मेरे जज्बात को मज़ीद भड़का रही थीं। मैं जितनी शिद्दत से उसे अपने करीब करता, वो उतनी ही मोहब्बत से मुझ में समा जाती और फिर पूरी तरह मैं उसमें गुम होता चला गया। मेरी बीवी ने मुझे हरगिज़ भी यह एहसास नहीं होने दिया था कि मैं अंधा हूँ। मेरी मोहब्बत का जवाब भी उसने बेहद मोहब्बत से दिया था। मेरे अधूरेपन और तशनगी को उसने अपने वजूद से पूरा कर दिया था और ऐसे ही आधी रात गुजर गई थी। मेरे जज्बातों को करार आ गया था, वो भी पुरसुकून हो गई थी। एक दूसरे के साथ ने हम दोनों को ही मुकम्मल कर दिया था। ज़ोया से शादी के इस फैसले पर मैं पूरी तरह मुतमईन था, जबकि कुछ लोगों ने मुझे शादी के लिए मना भी किया था। दरअसल बहुत अरसे से मेरे माँ बाप ने मेरी फुप्पो के साथ ताल्लुकात को ख़त्म किया हुआ था। मेरी माँ को मेरी गरीब फुप्पो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मैंने ख़ुद फुप्पो से राब्ता कायम किया था, क्योंकि मैं रिश्तों में दूरियों का कायल नहीं था। इत्तेफाक से फुप्पो से ताल्लुक़ ठीक ठाक होने के कुछ अरसे बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं अपनी आँखों की रोशनी खो चुका था, तो फुप्पो ने खुद ही अपनी जवान बेटी का रिश्ता मेरे लिए दे दिया। मैंने भी इनकार ना किया और इस तरह आज की रात ज़ोया मेरी हो गई। उसके साथ मिलकर खूबसूरत लम्हा गुजारने के बाद मैं बहुत पुरसुकून बिस्तर पर लेटा था कि अचानक ही आधी रात को वो बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकलने लगी। मैं जाग रहा था, इसलिए उसके कदमों की आवाज़ को महसूस कर सकता था। मैंने फ़ौरन से उसे आवाज़ देकर पूछ लिया कि ज़ोया कहाँ जा रही हो। मेरे सवाल पर उसने फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद आहिस्ता से कहने लगी कि मैं ताज़ा हवा के लिए छत पर जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ कि उसे तो थकन से चूर होकर सो जाना चाहिए था, लेकिन वो मुझसे इजाज़त लेकर छत पर चली गई। मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके पीछे जाता। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए करवट बदल कर सो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो ज़ोया की चूड़ियाँ मुझे अपने करीब खनकती हुई सुनाई दी। मैंने धीरे से उसे पुकारा तो वो मेरे करीब आ गई
मेरे माथे को चूम कर कहने लगी कि अब उठ जाइए ना, सूरज निकल आया है, 10 बज रहे हैं। 10 बजे का सुनकर मैं हैरान हुआ। मुझे पता ही नहीं चला आधा दिन गुजर गया, वरना मैं तो सवेरे उठने का आदी था। फिर जोया खुद मेरा हाथ पकड़कर मुझे डाइनिंग टेबल तक ले गई। हमने साथ बैठकर नाश्ता किया। मैं अपने एकाएक अमल से अपनी मोहब्बत जताने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था कि अपनी मोहब्बत की डोर से उसे कुछ इस तरह बांध लूं कि वो फिर कभी मुझसे अलग ना हो सके। दरअसल ये खौफ मेरे दिल में था कि मेरे अंधे होने की वजह से कहीं हमारा रिश्ता कमज़ोर न पड़ जाए। लेकिन जोया ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो हर कदम पर मेरा साथ निभाएगी। मेरा बहुत बड़ा सा कारोबार था जो अब मैं अपने मैनेजर की मदद से संभाल रहा था। नौकरी होती तो छुट्टियां ले लेता, लेकिन कारोबार में छुट्टी मुमकिन नहीं होती, इसलिए मुझे पहले ही दिन से दफ्तर जाना था। जोया कहने लगी कि परेशान ना हो, मैं यहाँ आराम से रह लूँगी। मेरे घर में एक ही नौकरानी थी जो बहुत पुरानी और वफादार थी। मैंने उससे कह दिया कि वो जोया का अच्छे से ख्याल रखे और उसके साथ साथ रहे, और मैं खुद दफ्तर के लिए चला गया। शाम के वक्त मैं लौटा तो जोया मेरा इंतज़ार में बैठी थी। फिर हम दोनों डिनर पर चले गए। इसी तरह रात को वापस लौटे तो मैंने फिर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसने भी खामोशी से खुद को मेरे हवाले कर दिया। फिर तो हमारी बातों का सिलसिला चल निकला, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब दूसरी रात भी जोया वहाँ खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। शायद उसे लगा कि मैं सो रहा हूँ, जबकि मैं बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसके कदमों की आवाज़ ने मुझे बता दिया था कि वो कमरे से बाहर जा चुकी है, लेकिन इतनी रात को वो कहाँ गई थी। मैं ऐसे ही करवटें बदलता रहा। फिर घंटों बाद जब वो वापस लौटी तो थककर बिस्तर पर लेट गई। मैंने धीरे से पूछा, जोया कहाँ गई थी? तो वो चौंक कर उठी। फिर कहने लगी, ताज़ा हवा खाने छत पर गई थी। दरअसल बंद कमरों में मेरा दम घुटता है और आपके घर के हर कमरे में एसी चलता है, इसलिए मुझे ताज़ा हवा की बहुत कमी महसूस होती है। उसकी बात पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दरअसल मेरी फुप्पो मिडिल क्लास फैमिली से थी। उनके घर में एसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। शायद इसीलिए जोया को भी इस तरह के माहौल की आदत नहीं थी। यही सोचकर मैं भी खामोश हो गया। इसी तरह कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। हमारी शादी को अब 1 महीना गुजर गया था। मैंने कमरे की खिड़कियां खोलनी शुरू कर दी, एसी बंद करके पंखे चलाने लगा ताकि जोया को ताज़ा हवा की कमी महसूस न हो। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब ये करने के बावजूद भी जोया का छत पर जाना बंद नहीं हुआ। जब मुझे ये बात कुछ अजीब महसूस हुई तो मैंने अपनी पुरानी मुलाजिमा को कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि तुम जोया पर नज़र रखो, मुझे बताओ कि वो छत पर क्या करती है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि जोया का रवैया कुछ दिनों से मुझसे बदला बदला सा महसूस हो रहा था। वो बहुत कम बात करने लगी थी, अक्सर खामोश रहती थी। मैं उसे अपने करीब करता तो मुझे बस उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे वो मुश्किल से मुझे बर्दाश्त कर रही हो। उसके अंदाज में पहले की तरह अपनापन नहीं रहा था और इसी बात ने मुझे शक में मुब्तला कर दिया था। लेकिन ये करके भी मुझे कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, क्योंकि नौकरानी ने कोई ख़ास बात नहीं बताई। वो कहने लगी कि मालकिन छत पर ताज़ा हवा के लिए ही जाती हैं, शायद उन्हें आधी रात को ताज़ा हवा खाने की आदत है। मुलाजिमा की बात पर मैं मुतमईन हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी थी और मैं उस पर बहुत एतबार भी करता था। पहले उसका शौहर मेरे पास मुलाजमत करता था, फिर उसके शौहर का इंतकाल हुआ, वो बेवा हो गई तो मदद के लिए मेरे पास चली आई। उसके बच्चे भी नहीं थे, इसलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया। तन्हा औरत है, उसका भी गुजर बसर हो जाएगा और मुझे भी एक काबिले भरोसा औरत मिल जाएगी। तभी से वो मेरे घर में थी। ऐसे ही हमारी शादी को 2 महीने गुजर गए। मेरी ज़िंदगी की तन्हाई दूर हो गई थी। मैं दफ्तर से लौटता तो जोया मेरे इंतज़ार में बैठी होती। मैं भी जोया के साथ बहुत खुश था।
اس لیے چاہتا تھا کہ ہماری زندگی پورے طریقے سے مکمل ہو جائے۔ زویا جب ہنستی مسکراتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں اس کی مسکراہٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ رات کے پہر جب وہ میرے بہت قریب ہوتی تو میں اس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش کرتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اپنی آنکھوں کی روشنی واپس چاہنے لگا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے کچھ رپورٹس اور اپنی میڈیکل کنڈیشن بڑے شہر کے ڈاکٹروں کو ای میل کر دی تھی۔ کچھ دنوں بعد جواب آیا کہ میرا آپریشن ممکن ہے اور کافی حد تک چانسز ہیں کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ اتفاق سے مجھے کچھ کاروباری معاملات کے سلسلے میں بھی جانا تھا، اس لیے میں نے زویا سے یہ بات چھپائی اور کاروبار کا کہہ کر ایک ہفتے کے لیے بڑے شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر میرا آپریشن ہوا اور میری آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا جس نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن ایک ہفتے کے بجائے مجھے 15 دن لگ گئے اور میں صحیح طرح سے 15 دن کے بعد اپنی آنکھوں کی روشنی کے ساتھ گھر واپس لوٹا تھا۔ میں زویا کو یہ سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ اب میں دیکھ سکتا ہوں اور ہماری ہر خوشی اب مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنے ہاتھ میں اسٹک پکڑ رکھی تھی، کیونکہ میں اس سرپرائز کو اتنی آسانی سے کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ زویا نے مجھے دیکھا تو اس نے اپنے لفظوں سے تو مجھے خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ دیکھ کر تو میں چونک گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری واپسی پر اسے خوشی نہیں بلکہ پریشانی ہوئی ہے، جبکہ اپنے لفظوں سے وہ ایسے ثابت کر رہی تھی جیسے بہت خوش ہے۔ میں اس کے دو روپ دیکھ کر نہ صرف حیران ہوا تھا بلکہ میں نے اپنی سچائی بھی اس سے چھپا لی کہ میں اسے دیکھ سکتا ہوں۔ میں تقریباً رات کے وقت ہی لوٹا تھا، اس لیے کچھ دیر بعد ہی ہم دونوں ایک ساتھ بستر میں تھے۔ میں نے تھکان کا بہانہ بنایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ ابھی بھی آدھی رات کو چھت پر جائے گی، جبکہ کمرے میں پوری طرح سے تازہ ہوا موجود تھی، اور پھر آدھی رات کو وہ معمول کے مطابق اٹھ کر چھت پر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے چھت پر پہنچ گیا۔ میرا بڑا سا بنگلہ تھا، اس لیے چھت بھی کافی بڑی تھی، اور چھت کے ایک کونے پر ایک کمرہ بھی بنا ہوا تھا جس میں کباڑ پڑا ہوا تھا۔ میری بیوی سیدھی اسی کمرے میں چلی گئی تھی، اور یہی بات مجھے چونکا رہی تھی کہ اگر وہ تازہ ہوا کھانے آئی تھی تو پھر اس کباڑ والے کمرے میں کیوں گئی۔ میں بھی دبے پاؤں اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیوی بھی وہاں تنہا نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ میری وفادار ملازمہ موجود تھی، جسے پیسے دے کر میں نے اپنی بیوی کی نگرانی کو کہا تھا۔ میری بیوی آدھی رات کو اس نوکرانی کے ساتھ یہاں آخر کیا کر رہی تھی؟ یہی سوچ کر میں نے کچھ اور اپنے قدم دروازے کی طرف کیے اور اپنے کان لگائے۔ جو کچھ میں نے سنا میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ میری بیوی اور وہ نوکرانی دونوں میرے اعتبار کی دھجیاں اڑا چکی تھیں۔ میری نوکرانی جسے میں نے بیوہ سمجھ کر اپنے گھر میں جگہ دی تھی، وہ میری بیوی کا استعمال کر رہی تھی، اور شاید میری بیوی نے میری خامی کی وجہ سے اس نوکرانی کے آگے ہار مان لی تھی۔ وہ نوکرانی میری بیوی کو دھمکا رہی تھی کہ اگر میری بیوی نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے سارا سچ بتا دے گی کہ کتنے مہینے سے ہر رات اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور میری بیوی اس سے گھبرا کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے ایسا کچھ مت بتانا۔ کچھ دیر تو میں خاموشی سے کھڑا رہا، پھر دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن وہ یہی سمجھی کہ شاید میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، اس لیے اس نے نوکرانی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کہنے لگی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں تو ہوا کھانے چھت پر آئی تھی تو بلی کی آواز پر یہاں پر آ گئی۔ اسے لگا میں نوکرانی کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے وہ میرے منہ پر جھوٹ کہہ رہی تھی۔ میں غصے میں آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر کہا، خدا کے واسطے زویا جھوٹ بولنا بند کرو
اور بتاؤ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ نوکرانی تمہیں کیوں بلیک میل کر رہی ہے اور تم سے کیا چاہتی ہے؟ میری بات سنتے ہی زویا کا چہرہ زرد پڑ گیا، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوکرانی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ میں اس طرح سے چھت پر آ جاؤں گا یا پھر میری آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی۔ اس کے بعد زویا نے جو سچ مجھے بتایا، اسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ زویا نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ شادی سے پہلے بہت بڑا سچ ہم نے آپ سے چھپایا تھا اور وہ سچ اس نوکرانی کو معلوم تھا۔ یہ مجھے پہلے دن سے ہی بلیک میل کرنے لگی اور میں اس کے آگے مجبور ہو گئی کیونکہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے پہلے ہی رات اپنی محبت سے مجھے اپنا بنا لیا تھا۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے میں اس کی بلیک میلنگ کا شکار ہو گئی۔ زویا نے بتایا کہ مجھ سے شادی سے پہلے اس کا ایک جگہ نکاح ہوا تھا۔ وہ لوگ بہت ہی پیسے والے تھے، لیکن وہ لڑکا عیاش قسم کا تھا۔ نکاح کے بعد وہ زویا کو اپنے ساتھ گھمانے پھرانے کے بہانے لے گیا اور پھر اسے استعمال کر کے کچھ ہی دنوں کے بعد اسے طلاق دے دی۔ سارے محلے میں زویا کی بدنامی ہو گئی کہ نکاح کے بعد اس نے اپنے شوہر سے تعلق بنا لیا تھا، جبکہ رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور پھر طلاق بھی ہو گئی۔ ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ اسی محلے میں میری نوکرانی بھی رہتی تھی۔ اسے بھی اس بات کا اچھی طرح علم تھا۔ جب زویا رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تو اس نوکرانی کو پتہ چل گیا کہ زویا ہی وہ لڑکی ہے جس کی طلاق ہو چکی ہے، جبکہ یہ بات نہ مجھے پتہ تھی اور نہ میری پھپھو چاہتی تھی کہ مجھے یہ بات پتہ چلے۔ وہ بس زویا کو عزت سے رخصت کرنا چاہتی تھیں۔ انہیں خوف تھا کہ اگر یہ بات مجھے پتہ چل گئی تو میں زویا سے شادی نہیں کروں گا، اس لیے انہوں نے زویا کی پہلے نکاح والی بات جان بوجھ کر مجھ سے چھپائی تھی۔ لیکن وہ بات زویا کے گلے کا ڈھول بن گئی، کیونکہ رخصتی سے کچھ دن پہلے اس کے پہلے شوہر نے فون کر کے اسے دھمکانا شروع کر دیا اور زویا کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شادی کی رات ہی زویا سے ملنے کی بات کی۔ اسے میرے گھر کا بھی پتہ معلوم تھا۔ اس نے زویا کو مجبور کیا کہ وہ زویا چھت پر اس سے ایک بار ملنے کے لیے آ جائے۔ زویا یہ سچ مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر اس نے یہ سوچا کہ وہ ایک بار اپنے سابقہ شوہر سے مل کر کسی طرح اس قصے کو ختم کر دے گی، اسی لیے وہ چھت پر آئی۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نوکرانی نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور یہ بات مجھے بتانے کے بجائے وہ زویا کو ہی بلیک میل کرنے لگی۔ ہر رات کو زویا سے پیسے لینے لگی۔ وہیں دوسری طرف زویا کے سابقہ شوہر سے بھی وہ پیسے لے لیتی تھی اور پھر اسے بلا لیتی تاکہ وہ زویا کو پریشان کرے۔ وہ ایک سائیکو مریض تھا جسے یہ سب کر کے مزہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں مل کر زویا کی زندگی کو عذاب بنا رہے تھے۔ وہ میرے آگے شرمندہ بھی تھی اور جھوٹ بولنے پر مجبور بھی، کیونکہ وہ بس ہمارے رشتے کو بچانا چاہتی تھی۔ ابھی بھی نوکرانی نے اسے چھت پر بلایا تھا کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ زویا کو دھمکا رہی تھی کہ اگر زویا نے اسے پیسے نہ دیے تو اس کا سچ مجھے بتا دے گی، جبکہ اب زویا کے پاس پیسے نہیں بچے تھے۔ اس نے نوکرانی سے منع کر دیا، مگر وہ زویا کو یہ دھمکی بھی دے رہی تھی کہ اگر اسے وقت پر پیسے نہ ملے تو وہ اس کے پہلے شوہر کو بھی یہاں بلا کر ہنگامہ کھڑا کروا دے گی۔ جس نوکرانی کو میں بیوہ اور مظلوم عورت سمجھ کر رکھ رہا تھا، اس نے میری بیوی کا جینا مشکل کر رکھا تھا۔ کچھ کمی زویا کی بھی تھی جس نے مجھ پر بھروسہ نہ کر کے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی تھی۔ میں نے نوکرانی کو کھڑے کھڑے نوکری سے فارغ کر دیا اور گھر پر مزید گارڈز لگا دیے۔ زویا کا پہلا شوہر نوکرانی کی مدد سے اندر آ جایا کرتا تھا، لیکن نوکرانی کو ہٹانے کے بعد اس کا یہاں آنا خود بخود بند ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے خلاف پولیس میں بھی کمپلینٹ درج کروا دی تھی۔ زویا کو بھی سمجھایا کہ وہ آج کے بعد مجھ سے کوئی بات نہ چھپائے گی۔ جہاں اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہے، وہیں وہ میرے آگے بہت زیادہ شرمندہ بھی ہو گئی، جبکہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنی ماں کے کہنے پر چل رہی تھی۔ میری پھپھو ہمیشہ سے نادان تھیں، غلط فیصلے کرتی تھیں، اسی لیے میری ماں کو وہ بری لگتی تھیں۔ ابھی بھی یہ سچ چھپا کر
मेरी फुप्पो ने अपनी बेटी को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। मैंने ही ज़ोया को समझाया कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये जानकर भी कि तुम पहले से तलाक याफ्ता हो, मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहने में कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरी बात सुनकर वो मेरे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। बहुत अरसे से उसके दिल में ये खौफ था कि आज आंसुओं की सूरत में वो निकल गया। जब ये खौफ ख़त्म हुआ तो वो पहले की तरह हंसने बोलने लगी, फिर से अपनी मोहब्बत मुझ पर नछावर करने लगी और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो गई। मैं सब लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को झूठ से शुरू ना करें, क्योंकि एक झूठ 100 झूठ बोलने पर मजबूर करता है और रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर शादी के वक्त मेरी बीवी मुझे पहले ही तलाक के बारे में बता देती तो शायद उसे ये हालात न झेलने पड़ते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।